Hello and welcome to Art History Plus. I've just finished my conversation with Sumit Naik. He's an amazing talent from Goa. He works in charcoal. It's very hyper-realistic works. I learned a lot through this podcast. It's a short 15-minute podcast. This video is brought to you by La Ananta Absinthe, liquid of the legends. It's very rare, but we have India's own absinthe brand. It's called La Ananta. Check it out. It's available all over the country. This festival, the Goa Open Arts Festival, has an amazing bunch of artists from all over Goa, local talents, and it's got a lot of passionate people working together. You'll see different genres of art. I was extremely thankful that the Goa Open Arts gave me Sumit's time to kind of I had a fantastic chat with him. You're going to learn something from this conversation. There's some emotional subjects that he discusses and why he uses charcoal, and he's also actually opened up about his process of charcoal. So there's lots to learn here. I hope you watch this whole short podcast. It's a 15-minute podcast. We'll be making reels also, but here goes. I hope you like it. We have with us this guy. He's young, but my God, what a talent! If you see his works in charcoal, they're fantastic. And I have so many questions for him because may I ask you how old are you? Yeah, I'm 23 years old. At 20, आप मुंबई आ सकते हो. No, this kind of talent and this kind of detailing. So we're going to really zoom into the images to kind of show you the detail in which he goes into it. So this conversation is going to be in Hindi and in English because my Konkani is not so great. He speaks fantastic Konkani, but he also speaks Hindi, and we decided that we will stick to one language. We'll stick to either English or to Hindi. Yeah. हिंदी में बात चालू करने का? दोनों चलता है. Yes, it can be in English also. So okay. You were telling me just now that we can हिंदी में बात switch. Yeah. So, हाँ, तो मेरे को अभी बता रहा था कि मेरा हिंदी बॉम्बे हिंदी है, ठीक है? So मुझे अभी तू बता रहा था कि स्कूल में तुझे आर्ट स्कूल में इतना ऐसा काम करने देते नहीं. उसमें क्या है कि there is a restriction for this medium. So they don't support this medium, and I was very much keen to explore more and more about this medium only. And before joining this college also, I've been practicing over this medium, and it's for me it was like to continue and take it to the best level. So I learned not from the college, but over social media, all the artists I can see and learn from. Wow. And then I did on my own this practice. So I dropped out from the college and did. तू कॉलेज छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया. मतलब 3 साल के बाद. छोड़ने का क्या है इसमें? छोड़ने का रीज़न यही था कि उधर नहीं जम रहा था. क्या नहीं जम रहा था? इतना कॉलेज छोड़ दिया? आर्ट स्कूल छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया. वैसे पहले तो पूरा प्लान था कि 4 साल कंप्लीट करने, मतलब डिग्री कंप्लीट करनी है और फिर छोड़ देना है, फिर अपने आप करना है. फिर तो जैसे सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ तो थर्ड ईयर को ऑन द हाफ द वे पता चल गया कि पॉइंट क्या था छोड़ने का? क्या फंडा क्या था? फंडा यही था कि घर पे क्या बोला? घर पे कुछ नहीं बताया. जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुई घर तक नहीं बचाया. एग्ज़ाम के दूसरे दिन ही बता दिया कि नहीं, छोड़ दूंगा. माँ मैं शादी करके आया हूँ. शादी करके आया हूँ, नहीं रहना है अभी इसी के साथ. सो बेसिकली तूने चालू किया अपना चारकोल. तेरा काम इतना डिटेल में है. तेरा काम इतना डिटेल में है और तू चारकोल कर रहा है. मैं तुझे बता रहा हूँ कि 20 साल पहले, मैं 40 का हूँ, जब मैं बहुत साल पहले इतना रियलिस्टिक काम करने में कॉलेज में तभी मतलब एक हवा था कि रियलिस्टिक काम का जे स्कूल ऑफ काम में हुआ. फिर बीच में एक पूरा स्पेस था. अभी फिर मैं मास्टर्स था MSU बड़ौदा में, तो कंसेप्चुअल आर्ट, एब्स्ट्रैक्शन, लोग मतलब अपना हैंड ड्राइंग का क्वालिटी छोड़ दिया लोगों ने. पीपल वर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रैक्टिस. अभी मैं इतने सालों के बाद वापस तेरे जैसे एक आर्टिस्ट का काम देखा हूँ जहाँ पे इतना डिटेल में काम है. और तेरा ये जो पेंटिंग है तेरे माँ के साथ, यू आर लाइंग डाउन विद योर मदर. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट वर्क? सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. I mean, it's an installation? It's a kind of both installation plus an artwork. Please explain it. So this is a big work which covers two sides of my story. One side I have myself and one side is my mother.
and there is a space in between that shows a mirror which is नहीं like वैसे मत एक्सप्लेन कर, मैं तुझे बोल रहा हूँ कि ये काम मतलब ऐसे स्पेसिफिकली फिजिकली वो तो specific- फोटो में दिख जाएगा, हाँ दिख ये जाएगा। कवि को कहने का क्या है? कहने का मतलब ये कि वो एक फेज था जब मैंने कॉलेज छोड़ दी, हम्म, और मुझे वहाँ जम नहीं रहा था तो छोड़ दी, क्योंकि मुझे कुछ अपने आप से करना था, और ऐसा करना था कि बहुत बड़ा हो और जो किसी ने पहले नहीं किया हो, और फायर था वो, हाँ करना फायर है। था, अंदर करना ही था। अभी भी है। हाँ अभी भी है। और वैसे मैंने इतना बड़ा पहले स्टेप नहीं लिया था और इतना बड़ा साइज पे भी नहीं किया था, तो इट वाज लाइक स्किपिंग 6-7 स्टेप्स एंड मूविंग अहेड लाइक सो। हाँ बिग मूव, बोल्ड हाँ मूव। बिग मूव था तो, और काफ़ी खर्चा भी पड़ा वो उसके चल लिए। वो तो रिकवर हो जाएगा भाई, तेरे हाँ। जैसा टैलेंट पैसा नहीं कमाएगा तो कौन कमाएगा फिर? हाँ तो कमाएगा तू, मतलब अच्छा वो कंटिन्यू मैन, इट्स गुड वर्क। सो ये उस आर्टवर्क के बारे में कि मुझे करना था, और कोई सपोर्ट नहीं था, सिर्फ एक मम्मी का था जो मैं उसे कहना भी नहीं सकता, कह भी नहीं पाया, क्योंकि उस आर्टवर्क में भी दिखाया है कि मेरा हाथ अच्छा दबोचा है, क्योंकि Clenched. मैं नहीं हेल्प नहीं मांगना चाहता, लेकिन खुद से कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन वो दूसरी साइड से है जो मुझे छूट दे रही है। दे रही है, जो देती जा रही है, जो हेल्प का हो आ रही है। सो वो काफ़ी ग्रेटफुल था। और वो मिरर के बारे में ये है कि वो उस फेज़ में मैंने देखा कि दूसरी साइड मेरे दिमाग में सोच के दूसरी साइड ऐसा लगा कि ये स्पेस अच्छा नहीं है, तो मैं अपना एक खुद का स्पेस बनाऊंगा और दूसरी स्पेस में वैसे जाके एक तेरे को जैसे चाहिए जो होगा। करना है वो करूँगा। सो वही वो सिग्निफाई करता है। तुझे किसी ने कभी क्या? चिढ़ा नहीं कि ये फोटो जैसे दिखता है? मतलब हाँ, फोटो बोलते हैं फोटो ही खींच ले, हाँ यही ये कॉमन है। इतना हाँ। डिटेल करने से अच्छा फोटो ही खींच लेता तू। हाँ तो ऐसा जब कोई बोलता है हाँ तो क्या बोलते हैं उनको? तो इस हैंडमेड स्किल, मतलब कोई ऐसे बना नहीं सकता क्योंकि मैंने अपने आप को दूसरों आर्टिस्ट से सेपरेट किया है, क्योंकि उनसे आगे निकल मतलब जो ये स्किल ये करते हैं, मतलब चारकोल और पेंसिल से उनसे आगे अच्छा करने लगा वो मैं, क्योंकि तूफान काम है वो, हाँ। जो फेस का जो डिटेलिंग है, बाल एक एक बाल के ऊपर भी कुछ मतलब हाईलाइट है और मस्त है वो। और तो- ऐसे कम ही है आर्टिस्ट देखने गए तो। तू या पराग सोनारकरी को हाँ। जानता है? पराग सोनारकरी, हाँ अपन उसको मैं जानता हूँ, लेकिन उसके और मेरे बीच में भी डिफरेंस है, क्योंकि उसका साइज काफ़ी बड़ा है मेरा दोस्त है। और वो कलर में क्या ऑयल में करता है, Oil, लेकिन acrylic में करता एक्रेलिक में करता है। और तू उसका 100% चारकोल करता है। हाँ 100% चारकोल करता है। और अभी ये जो पेंटिंग तूने किया, सॉरी हाँ। अभी तूने जो पेंटिंग किया वो लड़की आईने में देख रही है, आईने में देख रही है वो। तो उसका मतलब कोई लोग तुझे बोलेगा कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फिर से हाँ। ब्यूटी है मतलब। हाँ ब्यूटी वो वही है, क्योंकि एक्सटर्नल ब्यूटी टाइप लोग जो जज करते हैं एक आदमी को उसके आउटसाइड अपीयरेंस से, वो लड़की खुद अपने हाँ। आईने में खुद को देख रही है, तो वो ही खुद अपने अपीयरेंस को जज कर रही है, या इस हाँ। पेंटिंग में कुछ और है? नहीं, इस पेंटिंग में और कुछ है कि लोग उसे देख रहे हैं और दूर से नहीं देख पाएंगे वो, क्योंकि उस जो डिटेल्स है वो दूर से नहीं देख पाएंगे, वो आगे जाना ही पड़ेगा और बराबर। देखना ही पड़ेगा, एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। बराबर। वैसे ही एक इंसान को जानने के लिए उसके दूर से नहीं पता चल सकता, और आगे जाओ और पता लगाओ वैसे ही। और वो ऐसे कनेक्टेड है एक जैसे वो ऊपर से नीचे तक फेड होती है डार्कनेस से, मतलब वो पूरा ब्लैक होता है आउट। सो वो ऐसा है कि वो कनेक्टेड है उस डार्कनेस से। सो और जो पार्ट ऊपर है, जो लाइट पड़ा है, वही लोग देख पाते हैं, जो पूरा उसका पास्ट है या पूरा डार्कनेस है वो समझ नहीं पाते। वैसा ही जस्ट बिकॉज तेरा काम इतना हाइपर रियलिस्टिक है और फोटोग्राफिक रेफरेंसेस को फोटो रियलिज्म, हाँ बोल सकते हाइपर हैं। रियलिस्टिक। अगर हम ऐसे बोलते, जो आई जस्ट वांट टू फॉर आई नो द होल प्रोसेस, बट आई जस्ट वांटेड टू, कैन यू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डूइंग प्रोसेस, नॉट फुल, आई मीन वो टैलेंट तो प्रैक्टिस से ही आता है, प्रैक्टिस। but essentially I want to, you know, if you can explain to people what paper you use, what Yeah. materials you use, या what is the process of, you know, do you use a projector to project the image, then do you use a Yeah. grid? सो स्टार्ट का ये प्रोसेस है कि आपको एक आइडिया क्रिएट करना पड़ता है जो आपको बनाए, मतलब एक कॉन्सेप्ट,
एक स्टोरी जिसके ऊपर आप रिलाई करोगे उस पेंटिंग को बना, और वो भी तुमको 3 महीना टिक के रहने का है। हाँ उस स्टोरी को मतलब स्टिक क्योंकि तुम काम करते हो, बीच हाँ, में चेंज नहीं हो सकता। नहीं चेंज नहीं हो सकता। तो एक आइडिया आ गया, उसे पेपर पे निकालो, स्केच पहले, स्केच होने के बाद उसे मॉडल को ढूंढो, फोटोग्राफर को ढूंढो और फिर दोनों का शूट ले लो। शूट फोटोग्राफर को भी ढूंढो। हाँ, फिर फोटोग्राफर से उसे परमिशन, उसके डेट लेने पड़ते हैं। लेकिन तो उस फोटोग्राफर का फोटोग्राफ खरीदता है? नहीं खरीदता, अब मैं कल मैं को ही कमीशन photographer- करता हूँ, पूरा मैं ही कमीशन करता So हूँ। it's your property. हाँ। The photograph is also your property. ऑल्सो या सो एक बार पूरा एंगल्स और डायरेक्ट में करता हूँ फुल शूट। वो उसके बाद जो एक फ़ोटो नहीं होता, वो 4 5 6 तक फ़ोटो होते हैं जो कंबाइन होके एक एक पार्ट को डिटेल्स होते हैं। बराबर। तो उनको सबको जॉइन करके फिर वो एक ड्राइंग बनाना पड़ता है। तो हाँ, और बाद में ड्राइंग प्रोसेस है कि हाँ, मोटा पेपर लेता हूँ मैं, Thick 300 paper. हाँ 300 GSM. 300 GSM, वो ब्रिस्टोल स्ट्रैथमोर 300 GSM सीरीज का मस्त आता पेपर है वो। हाँ मस्त। ब्रिस्टल स्ट्रैथमोर। हाँ और कोल्ड प्रेस पेपर है वो। कोल्ड, हाँ पता नहीं कोल्ड या सॉफ्ट प्रेस। हम्म। सो एक बार ग्रिड यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि प्रोजेक्टर इतना क्यों नहीं बारीक use से करना? प्रोजेक्टर नहीं, हाथ से हो जाता है कैलकुलेट करके। बराबर। तो एक बार तो चारकोल का ये फेज है कि पहले चारकोल का पाउडर बनाओ, उसको ब्रश से फिर अप्लाई करो, तो एक ब्लेज स्मूथ सरफेस बनता है। उसके ऊपर फिर पेंसिल और इरेज़र, पेंसिल होल्डर इरेज़र होता है, उससे डिटेल बनाओ जब तक वो जैसा तुम्हें डिज़ायर्ड है वैसा नहीं मिल जाता। बराबर। और फिर खेलते रहो उसके साथ जब तक तुम्हें वो खेलते वैसे रहो। That's a good word. He says खेलते रहो। हाँ, उस जो जैसा तुम्हें चाहिए। एक पेंटिंग कितना टाइम लगता है? 3 महीना लग सकता है। मतलब ठीक है, अगर कुछ continue, ब्रेक में बीच में हो तो 3 महीना लग सकता है, और हो जाता है। अगर तुम जैसे मैं एक दिन में 10 घंटे बैठता हूँ तो सिर्फ 8 घंटे काम पर कर पाता हूँ। सो हर दिन अगर 8 घंटे बैठा रहा तो 2 महीने भी हो सकता है। That's amazing, man. हाँ लोग इतना टाइम यूपीएससी के एग्जाम को भी नहीं बैठते फॉर डूइंग द एजुकेशन। सो यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग योर, बचपन से कर रहे हैं? बचपन से वैसे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। एक बार 8वीं को था मैं, तो मुझे अपने मैथ सर से एक ये मिला, कमीशन नहीं, तुम्हारा एक ऐसा स्कूल में एग्जीबिशन होगा, तुम्हें जो पूरे फ्रीडम फाइटर्स है इंडिया के, उनके सबके पोर्ट्रेट्स बनाओ और लगाओ। तो मैंने वो कर दिए, और तब से मेरा एक वही पेंसिल मीडियम ही स्टिक हुआ है। तब से मैं पेंसिल से ही प्रैक्टिस करने लगा हूँ, और उसमें ही अच्छा हूँ। जो मैं अपने आप को दूसरों से पेंसिल मीडियम में अच्छा समझता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस है उसमें, कमांड कंट्रोल भी, हाँ, वो कंट्रोल भी ज़्यादा है। और तेरे आर्ट स्कूल में क्या बोलते हैं ऐसा काम? आर्ट स्कूल में वो फर्स्ट नहीं, वो सिखाते ही नहीं, चारकोल उस लेवल पर नहीं है, क्योंकि एग्जाम पे नहीं आता। स्मजिंग वो इसमें क्या होता है तेरे कि प्रोफेसर को टेंशन आता रहेगा। प्रोफेसर ने मुझे कई बार बोला कि जो तुम्हारा काम है वो सेपरेट है और स्कूल का काम सेपरेट है। तो मुझे वो पता लगा, और फिर ऐसे डिसाइड किया कि नहीं होगा, इसे दोनों बैलेंस नहीं कर सकता, स्कूल भी और कॉलेज भी, और जो मुझे चाहते हैं उस मीडियम से वो नहीं, बैलेंस नहीं हो सकता। तो मुझे एक ही करना था, तो फिर वो कंटिन्यू किया। गुड, अमेजिंग मैन। मुझे कभी कभी लगता है कि मतलब जब राजा रवि वर्मा जब थे, तभी पॉडकास्ट लेने वाला कोई था नहीं, लेकिन क्वेश्चन और आंसर ऐसा ही कुछ होता होगा। यू हैव द एबिलिटी टू जस्ट टू कनेक्ट विद द ह्यूमन बीइंग बाय जस्ट डूइंग हाइपर रियलिस्टिक वर्क्स। Your works are stunning, man. Like they've got this fantastic quality. So आपको तुझे कभी ऐसा कलर वगैरह डालने का कुछ? कलर मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया और सीरियसली भी नहीं लिया। तो जब भी कॉलेज में सीखा हूँ तो सिर्फ कॉलेज में, तो उसके उधर मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने उतना इन्वेस्ट ही नहीं किया है कलर्स में अभी तक। बराबर। तो कलर लाना पड़ेगा, फिर कलर लाना पड़ेगा। हाँ, कलर भी अभी कुछ पूरा नहीं खत्म कर दिया है। नीचे जाना पड़ेगा घर से, लाना पड़ेगा। ऐसा मैं कर सकता हूँ, मतलब एक
उस इस स्टेज तक नहीं, मतलब जो मैं पेंसिल से कर पाता उस स्टेज तक नहीं। कौन सा मतलब पेंसिल यूज करता है? पेंसिल दूसरे 6B हाँ नहीं 6 भी नहीं, पूरे रेंज होती है। एच से लेके हाँ 6B ये तक। से, और स्टेडलर्स के मोस्टली अभी यूज़ कर रहा हूँ। मुझे एक बात क्वेश्चन पूछना था, हाँ पेपर डैमेज नहीं हो, हाँ इतना ब्लैक मारता है तो हाँ। पेपर डैमेज नहीं हो उसके लिए प्रोसेस क्या है? हाउ डू यू मेंटेन? बिकॉज इफ यू रब चारकोल टू मच ऑन पेपर, ना ऑन स्टैटमोर, हाँ तो वो डैमेज होगा, चिकना हो जाता है, इट हाँ। बिकम्स लाइक वो इतना कार्बन बैठ जाता है फाइबर हाँ, में कि वो शाइन होता है कि फाइनली उसके ऊपर और ग्रेफाइट नहीं बैठ सकता। नहीं बैठ सो सकता। हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू उसके कैन? लिए पहले तो चारकोल डायरेक्टली मत अप्लाई करो पेपर पे, उसका पहले पाउडर कर दो, या चारकोल पाउडर आता है आता है लेकिन वो सही नहीं है। उससे आपको तो कैसे बनाता है? स्पॉन्ज, उससे पोर्स फट जाते हैं। बराबर। तो चारकोल पहले पेपर पे ऐसे या सैंड पेपर पे रब कर दो, हाँ, फिर डायरेक्टली 80 GSM पे और हाई 320 GSM पे चलेगा, 200 भी चल सकता है। चल सकता और अप्लाई ब्रश से, स्पॉन्ज मेकअप स्पॉन्ज से या कॉटन से, वैसे है। करो। और डार्कनेस बढ़ाते जाने का, हाँ डार्कनेस 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर ऐसे बढ़ाते जाओ। और इरेजर इरेजर से निकालने का फिर। इरेजर से निकलता है, अगर तुमने डायरेक्टली चारकोल लगाया तो इरेजर से नहीं निकलेगा, तो इसके लिए हाँ वही ब्रश से लगाना तो पड़ता तेरा है। मटेरियल असली में इरेजर ही है, हाँ इरेजर से मोस्ट ऑफ द वर्क 80% नहीं, हाईलाइट निकालने के लिए। हाँ हाईलाइट पूरा डिटेल्स उससे ही होता है। So no, it's really nice, and your this relationship with your mother is pretty healthy, man. या You actually, it's like this work that we're going to show everybody is a pretty lovely work. It's got a lot of emotional work, या and it's pretty वैसा है cool. कि मेरे वर्क्स ऐसे है कि लोग अपने लाइफ से कंपेयर करके वो रिलेट कर सके, अपने जो लाइफ में हुआ है बराबर। उससे रिलेट कर सके, वैसे ही वर्क्स बनाता हूँ मैं। और भी वर्क्स है उधर घर में। I also like the fact that your mother looks like like a house, like a you've not like glammed up your mother. Nah, Matlab, no. you've allowed us to see your mother the way you see her at home, in her natural setting, and on a bed sheet with a bed. Yeah. And I actually loved it. I don't have a mother, so I like when I see that I feel like, oh wow, like it's such a not just the quality of the work, but even what you've painted, not how you've painted. So it's really nice. I'd like to end this podcast. Okay. If you could please look into that camera, ask people to come for Goa Open Arts, Yeah. and So- also ask them to like, comment, and subscribe Yeah. to Art History Art history, okay. Plus. Art History Plus. Plus Art history plus. Thank you. So I'll be showcasing at Goa Open Arts 2024 from 23 to 28 of February. And yeah, please like, share and subscribe to Art History Plus. इसने बोला, मैंने नहीं बोला. हाँ मैंने बोला कर दो फिर. Thank you, man. Thank you. It's a great chat. Yeah.